السلام علیکم، میں ہوں نوید ریاض بنوہا۔ سب سے پہلے آپ ایک بار درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وسلم علیہ۔ خوبصورت ہاتھوں سے ہمارے چینل کو لائک کر لیں، سبسکرائب کر لیں، تاکہ ہماری آگے آنے والی جو بہترین معلومات ہیں وہ آپ کو بر وقت پہنچتی رہیں۔ رات سے شدید متاثر ہونے والی اقسام میں پہلے نمبر پر ہے سحر، پھر آتی ہے انقلاب۔ سحر ابھی بھی کاشتکاروں کے پاس موجود ہے، انقلاب نہیں ہے، لیکن یہ بھی رس سے متاثرہ لسٹ میں آتی ہے۔ اس کے بعد پھر آتی ہے وطن، چوتھے نمبر پر ہے ٹی ڈی ون، اور پانچویں نمبر پر ہے گندم۔ یہ بھی مارکیٹ میں موجود ہے، سندھ کے کاشتکار ٹی ڈی ون کو لگاتے ہیں۔ پنجاب میں یہ ورائٹی فیل ہو چکی ہے، میں 2 سال پہلے لگا چکا ہوں، اس پر رسٹ کا شدید حملہ آتا ہے۔ اور وطن اور انقلاب کاشتکاروں کے پاس نہیں ہے، لیکن ہماری لسٹ میں یہ لسٹ ہم نے پرووائڈ کی ہے ریسرچ کے اداروں نے، جو سابقہ سال میں جو تجربات کیے ہیں، جو ڈیٹا لیا ہے، جو کاشتکاروں کے فیلڈ سے جو انفارمیشن لی ہے، یہ ان کے مطابق کی ہے۔ اس میں ہماری طرف سے کوئی ترتیب و تطبیق، اس میں ہماری طرف سے کوئی ایڈیشن یا ڈیلیشن نہیں ہے۔ پھر آتی ہے ہمارے پاس چھٹے نمبر پر چکوال، ساتویں نمبر پر ہے جی بکھر 2002، آٹھویں نمبر پر ہے آری 2011، نویں نمبر پر ہے جی ہم سب کی آپ کی میری پسندیدہ گلیکسی 2013۔ اور اس لسٹ میں ہمارے پاس جو آخری قسم ہے، جو ابھی بھی کاشتکاروں کے پاس چل رہی ہے، جو کہ رس سے پچھلے سال شدید متاثر ہوئی ہے، عبدالستار یا AS 2002۔ اب اس لسٹ میں یہ بارانی کی قسم ہے، بکھر نہیں ہے کاشتکاروں کے پاس، اس کا سیڈ ختم ہے۔ آری کاشتکاروں کے پاس یا سیڈ کمپنیز کے پاس نہیں ہے، اور یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے۔ یہ دو اقسام ہمارے کاشتکاروں کے پاس نہیں ہیں، اور ان کو ہم نکال ہی لیتے ہیں۔ باقی جو بچ جانے والی اقسام ہے، یہ بھی گئی اور یہ بھی گئی۔ ہاں جی، اب جو ٹی ٹی بنا، اب جو کاشتکاروں کے پاس بیج موجود ہے، ابھی پچھلے ہفتے کی بات ہے، میں پنجاب سیڈ کارپوریشن ملتان کے دفتر میں بیٹھا تھا، ایک صاحب ہے ملتان کے گندم آ گئے تھے، انہوں نے کہا جی مجھے سحر چاہیے۔ میں نے انہیں روکا کہ سحر پر رسٹ بہت زیادہ آتی ہے، آپ کی پیداوار شدید متاثر ہونی ہے، اس ورائٹی کو آپ نہ لگائیں۔ تو میرے مشورے پر وہ روک تو گیا۔ تو باقی ٹی ڈی ون بھی میں نے خود بتایا کہ اپنے تجربہ سے بتایا کہ یہ رس سے اتنا نقصان ہوا کہ خرچہ پورا نہیں آیا ہمارا۔ گندم ون پچھلے سال سب سے پہلے جنوبی پنجاب کے ہمارے جو پلانٹ پیتھولوجسٹ ہیں، سید احمد خان صاحب اور ارشد بلوچ صاحب، انہوں نے مجھے جنوری کے آخر میں بتایا کہ یہ رپورٹ ہو گئی ہے رسٹ۔ سب سے پہلے گندم ون پر رسٹ آئی تھی جنوبی پنجاب میں، اور بہت زیادہ اس کی رپورٹ آئی تھی۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس ورائٹی کو بالکل نہ لگائیں، ورنہ آپ کو اگر سوچیں کہ آپ کی وقت کاشت جون سا بھی ہو، جنوری کے آخر میں کسی کاشتکار کے ذہن میں بھی نہیں ہوتا کہ رسٹ آ سکتی ہے۔ فروری پر اس پر حملہ شدید ہو گیا تھا۔ اس میں اس کے علاوہ گلیکسی جس سال خشک موسم تھے، ہم بات کر رہے ہیں 2016، 17، 18، ان موسموں میں گلیکسی نے بہترین پرفارمنس دی۔ اب 19 اور 20 یہ نمدار ہیں، بارشیں ہیں، یہ ورائٹی فیل ہو چکی ہے، اس پر حملہ بھی اچھا خاصا ہوتا ہے۔ عبدالستار میرے جنوبی پنجاب کے بھائیوں کو سلام،
कैटेगरीज वैरायटी को संभाले हुए हैं, अभी भी वो लगा रहे हैं, प्राइवेट सीड कंपनीज के पास भी है। इस साल की जो मीटिंग थी हमारी फैसलाबाद के रिसर्च इंस्टीट्यूट में, डॉक्टर जावेद साहब ने मुझे इन्वाइट किया, वहाँ पर गया तो पता चला कि जी अब्दुल सीड कंपनीज के पास, खास तौर पर रहीम अफसान वाली सीड कंपनीज के पास अब्दुल है, वो ये कहते हैं कि इसकी सिंध में ज़रूरत है। सिंध में नहीं है, पूरे जनूबी पंजाब में, पंजाब सीड कॉर्पोरेशन के पास इसका बीज है, पूरे जनूबी पंजाब में लगाई जाती है। तो उस पर रस अच्छा खासा आया था, येलो रस भी आया था। तो मेरी इस दफ़ा आपसे गुजारिश है कि इन अक़साम को छोड़ दें। हमने पिछली वीडियो में, हमने एक और वीडियो में आपको बताया कि जी रस के खिलाफ जो बहुत ज़्यादा क़ुव्वत मुदाफ़अत रखने वाले अक़साम हैं वो कौन कौन सी हैं, आपको उनमें से मुंतखब करना है। इन अक़साम में से आपके पास जो भी हैं आप लगा रहे हैं, आपके पास अगर मजबूरी है, बीज नहीं मिलता, या आपको इन अक़साम में से किसी से ख़ास तौर पर इश्क है, मोहब्बत है, तो ज़रूर लगाएं, लेकिन नवंबर के पहले हफ्ते में लगाएं। फिर आप तैयार रहिएगा कि आपको जनवरी के आखिर में आपके पास स्प्रे का फंजीसाइड का, जो कि रेकमेंड नहीं किया जाता, गंदम हमारी खुराक है, किसी भी सूरत रेकमेंड नहीं किया जाता, आप फरवरी में फिर तैयारी कर लें इन पर स्प्रे करने की। अगर आपकी स्प्रे ना हुई तो आई गारंटी आपकी पैदावार 25 से 30 मन के दरमियान आ सकती है, क्योंकि इस दफ़ा मौसम की पेशीन गोई जो आ रही है कि वो ज़्यादा लंबा है, ज़्यादा सर्दियाँ हैं, सख्त सर्दियाँ, रस्ट आती है जनवरी के आखिर में, और इन वैराइटीज़ पर रस्ट आ गई तो आप अभी से सोच लें, आप अपना कारोबार कर रहे हैं, ज़िम्मेदारा जो है ना वो एक कारोबार है, आप तखमीना लगा लें आपका खर्चा कितना होना है। इस दफ़ा खर्चे के बाद आपके पास इसके 30 मन से इसको ज़रा लें, तो 30 मन पैदावार पर 25 से 30 मन में आप देख लें क्या आपको ये बारी आती है, तो ठीक है लगाएं। तो उसमें यह है कि जी पिछले दफ़ा के जो फिगर्स हैं, जो रिसर्च के फिगर्स हैं, जो हमारे रिसर्च के इदारे हैं, मैंने आपको बताया उनका डाटा जो है उसमें ये आया है कि जी अपना काश्तकारों को उन्होंने जो डाटा लिया उसमें यह है कि दर्जा हरारत हमला कब होता है, जब दर्जा हरारत 10 से 20 के दरमियान हो, नमी 70 से 80% के दरमियान हो। ये वाला हमला होता है, पिछले दफ़ा ऐसा ही हुआ था, फरवरी में इन वैराइटीज़ पर टेम्परेचर डाउन हुआ और एकदम रस्ट आ गया। तो दर्जा हरारत लीफ रस्ट जो है ना वो 15 से 25 के दरमियान हो, और स्टेम रस्ट वो 25 से 35, स्टेम रस्ट मार्च में ज़्यादा हमला करता है, फरवरी में लीफ रस्ट और येलो रस्ट का पिछले दफ़ा इतना ज़्यादा नुकसान हुआ कि काश्तकार को पता ही नहीं चला कि क्या करे। तो पिछले साल का जो डाटा है उसमें आपको बता दूं कि 25% काश्तकारों की जो जिन्होंने जो तज्जिया किया, रिसर्च किया हमारे साइंटिस्ट ने, उनके मुताबिक 25% फसल पर हमला नहीं हुआ, और 67% 67% फार्मर्स के पास दरमियाना हमला था। दरमियाना हमले में साफ जाहिर है कि उनके पास ये वैरायटी थी, इनमें से कोई अक़साम थी, और 8% के बाद 8% फसल पर बहुत ज़्यादा हमला हुआ। बहुत ज़्यादा हमला मतलब कि उसकी 50% तक पैदावार कम हो गई होगी। और दरमियाने हमले में ये है कि आपकी अगर ये किस्म मौजूद है, इन अक़साम में से आपके पास हैं, तो आप फिर ज़्यादा हमले की तरफ भी जा सकते हैं। ज़्यादा हमला 8 से 9% का मतलब आधी पैदावार आपकी आम तौर पर औसत 45 मन आ रही है, तो आप फिर अगर 22 मन पर, 20 मन पर, ये है 50% तक नुकसान। इसमें हमला जो होना है वो उसमें फिर ये है कि पहली बात, इसमें हमारे पास दो वजूहत है। पहली बात कि इनमें से आपने कोई एक किस्म सेलेक्ट कर ली, दूसरी बात कि आपका जो वक्त काश्त है वो 15 नवंबर के बाद है, ये ज़हन में रख लें। आपकी इनमें से कोई किस्म है और वक्त काश्त 15 नवंबर के बाद है, फिर आप दरमियाने से शदीद हमले की तरफ जाएंगे। और दिसंबर वाले वो तो गारंटी है कि इन अक़साम में से कोई भी किस्म है और वो दिसंबर में लगा रहे हैं और वो स्प्रे नहीं कर रहे, उनकी फसल गई। आप अगर 15 नवंबर के बाद इन अक़साम में से कोई अक़साम काश्त, कोई किस्म काश्त करते हैं, तो फिर आपको स्प्रे लाजमी करना होगा, तब जाके आपके नुकसान कतरे कम होगा, लेकिन आपकी फुल सिक्योरिटी नहीं है। तो उसके बाद फिर जो आगे है हमारे पास हाँ जी, इसमें यह है कि जो ज़्यादा क़ुव्वत मुदाफ़अत वाली अक़साम है, हमारे पास जो रिजल्ट आया उसके मुताबिक, रिसर्च जो कहती है तो उसके मुताबिक कि जिन अक़साम में क़ुव्वत मुदाफ़अत ज़्यादा है तो उन पर नुकसान की शरह 1 से 3% है। 1 से 3% जिन अक़साम में क़ुव्वत मुदाफ़अत ज़्यादा है वहाँ पर हमला हो सकता है ज़्यादा, और जो दरमियानी क़ुव्वत मुदाफ़अत वाली अक़साम है उन पर 5 से 10% रस का हमला हो सकता है। जो कम क़ुव्वत मुदाफ़अत वाली अक़साम है
उन पर 40 से 50% तक रस्ट का हमला हो सकता है, और वो 40 से 50 वाली अक़साम यही है, 40 से 50%। आप सिर्फ ये जहन में रख लें कि इन अक़साम में से हमारा मकसद आपको मालूमात देना है, और आपको रस्ट से कोशिश हमारी यही है कि आपकी इस दफ़ा फसल रस्ट से मुतासर ना हो। आप देख लें कि इनमें से आपकी बेहतरीन मैनेजमेंट क्या होनी चाहिए। इन अक़साम में से अगर कोई लगानी भी है, मजबूरी है, तो नवंबर के पहले हफ्ते तक लगा लें, और फिर आप इसके लिए जहन बना लें कि आपने इस पर 2 स्प्रे कम अज़ कम करने हैं, तब आपकी फसल ज़्यादा महफूज होगी, वरना आपका नुकसान है। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया, तो आखिर में आपसे गुजारिश है कि आपको अगर इस वीडियो से, इन मालूमात से कुछ फ़ायदा हुआ है, तो आई गारंटी कि मुस्तक़बिल में जो हमारी वीडियोज़ आनी है वो इससे ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी, आपके लिए ज़्यादा मालूमात का बायस होगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कॉर्नर पर सब्सक्रिप्शन का लिंक आ रहा है, वहाँ पर क्लिक करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, अपनी कम्युनिटी में अपने दोस्तों को बताएं। हमारा मकसद हमेशा से यही रहा है कि जी आपको बेहतर से बेहतर मालूमात देना, ताकि हमारे काश्तकारों की पैदावार बेहतर से बेहतर हो। शुक्रिया, दो में याद रखिएगा।